शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपकी खिदमत में, ऐवान की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि गुस्ताखाना खाकों पर आपने जो वक्फा किया था, इसमें हुकूमत और अपोजिशन के फाजिल मेंबरान ने मिल बैठकर एक करारदाद पर इत्तफाक कर दिया है, और वो जो मुत्तफ़िका करारदाद है मैं ऐवान के सामने पेश करना चाहूँगा। इसमें मैं नाम पढ़ देता हूँ। परवेज़ अशरफ का नाम ऐड कर देना, ही इज़ रिक्वेस्टिंग। ओके। इसमें हुकूमत की तरफ से डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा, असद उमर साहब, शफ़क़त महमूद साहब, नूरुल हक कादी साहब और मैं शाह महमूद कुरैशी, हमारे एमक्यूएम के साथी उसामा कादरी साहब, पीएमएलएन से एहसन इकबाल साहब, नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी से, और शाहिदा अख्तर अली साहिबा JUI से, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब हुकूमत से इन्होंने, और राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं इनका नाम भी शामिल कर लिया जाए, तो उनका नाम शामिल कर लेते हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब तो बहरहाल देखिए वो तो कर लेते हैं। इस पे देखिए जब मुत्तफ़िका करारदाद है तो आप सभी उस पर शामिल हैं, आप सब उस पर शामिल हैं, पूरा ऐवान इस पर शामिल है, हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं है। अभी खाली नहीं कर दी, जनरली लिखा है तो दिस, हाँ सब ने कर दिया है। सर, आई विल प्रेजेंट द नेशनल असेंबली ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट, आपको पूछ रहे हैं, एक मिनट ये करारदाद पढ़ दें, उसके बाद आपको आ जाए। आपका आप लिखा दें, नाम दे दें। रुबीना इस्लाम साहिबा, ठीक है, आपका नाम GDA से, बलूचिस्तान से बीबी आपका अपना नाम दे। देखिए जो भी लिखवाना चाहे, किसी पे कोई पक्कतगन नहीं है। जब मुत्तफ़िका करारदाद है तो आप सबके नाम डाल देंगे जी, सबके नाम आ जाएंगे, तो आप डाल दीजिए ना, डाल दीजिए, सब साइन कर देंगे, सबसे साइन करा देंगे। इसके बाद आप ये हर पार्टी के मेंबर से जो जो चाहेगा वो दस्तखत कर देगा जी। आप इस चीज पे बेफिक्र रहें। ये मुत्तफ़िका करारदाद इस ईवान से पास होने जा रही है, इसको सुने आप। The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of blasphemous caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts by mischievous elements in some parts of the world, expresses serious concern at the highly disturbing statements and hate-mongering, especially by leaders like President Macron, justifying unlawful provocation and insult to sentiments of more than 1 billion Muslims through such hate-driven acts under the garb of freedom of expression. Recognizes with serious concern that Islamophobia has taken many forms, including denigration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, desecration of the Holy Quran, negative profiling by security agencies, killing of innocent people by cow vigilantes, attacks on women for wearing hijabs, ban on minarets, negative propaganda and disinformation campaigns by some media groups, manifestos of far-right and neo-fascist parties that call for expulsion of Muslims, condemns unequivocally the practice of blasphemy and of insulting prophets of Islam, Christianity and Judaism alike, condemns strongly all acts of terror, of violence in the name of any religion or belief, deplores equating of Islam and Muslims with terrorism, which goes against the international consensus and spirit of mutual respect and peaceful coexistence,
with the intention of effectively addressing the issue of Islamophobia. 1. Urges the government to recall its envoy from Paris. 2. Urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia, and ask the OIC countries to boycott French goods. Calls on Secretary General of the OIC to continue monitor the phenomena of Islamophobia and take necessary actions for presenting Islamic countries' common position on the matter, especially the issue of blasphemous caricatures of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and discussion. दिल आज़ारी हुई थी, लेकिन कौमी असम्बली में जो रवैया अपनाया गया, इससे पूरे आलम इस्लाम को, उनकी कास को और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसकी मज़म्मत में मैं कहता हूं कि काफ़ी हद तक हमें अभी बात हो गई है। नहीं चित्राली साहब मुश्तरका करारदाद आ रही है। मैं बात कर रहा हूं जी, बात कर रहा हूं कि उसके शान में जिस अंदाज में हमें यकजा होकर एक करारदाद पास करना था वो नहीं हो सका, और जो पैगाम है वो चला गया। जनाब स्पीकर मैं एक बात करना चाहता हूं, वो ये है, जनाब स्पीकर, हुकूमत अमली इक़दाम करती है, अपोजिशन जो है वो करारदाद पेश करती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चाहिए तो ये था कि आपस में मिल बैठते और ये करारदाद पास करते, हुकूमत एक इक़दाम उठाने के बाद उसको यहाँ कौमी असम्बली में पेश करता। लेकिन दोनों ने नाअहली का सबूत दिया जनाब स्पीकर, हुकूमत ने भी नाअहली का सबूत दिया। यहाँ अमली इक़दाम करना चाहिए, करारदादों से कुछ भी नहीं होता। कश्मीर चला गया इन करारदादों की वजह से, मुल्क तबाह हो गया इन करारदादों की वजह से, मुसलमानों में निफाक पैदा हो गया। जी शाह महमूद कुरैशी साहब आप बात जारी रखें जी। एक सेकंड रुक जाओ यार। सर मेरी स्पीकर साहब मेरी दरख्वास्त है तमाम मेंबरान से, सबके जज्बात हमें मोहतरम हैं, लेकिन अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को अपने जज्बात से ऊपर तरजीह नहीं दे सकते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि 10 मिनट के लिए मेरी अपनी साइड से भी और दूसरी साइड से भी सबसे दरख्वास्त ये है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके मामले के ऊपर यकीनन पूरी कौम यकजा है, और पूरी कौम की उम्मीद भी यही है और मुतालबा भी यही है कि उनके नुमाइंदगान जो इस हॉल में बैठे हुए हैं वो यक जुबान होकर दुनिया से इस पर बात करें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है 10-15 मिनट के लिए अब हाउस को मुलतवी कर दें, तमाम सीनियर नुमाइंदगान बैठ जाएं और जो रेजोल्यूशन है उस पर यक जुबान होकर बात की जाए। मैं दस बदस्ता इल्तिजा कर रहा हूँ, सियासत करने के लिए बहुत और चीजें मिल जाएंगी, खुदा का वास्ता इसके ऊपर सियासत ना करें। मेरी तमाम लोगों से आप थोड़ा सा सब्र करें, आप थोड़ा सा ख्वाजा साहब थोड़ा सा सब्र करें। ये हम तमाम पूरी आलम इस्लाम को ललकारा है फ्रांस ने, ये हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है कि मुश्तरका तौर पर एक करारदाद लेके आए इस हाउस से, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप सारे मिलकर इस पर मुत्तफ़िका हों। मैं 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करता हूं कि आप लोग मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद ला सकें।